Morning students, today we will start chapter number 1, relation and function. In this, first we will study the relation, then after this we will study function. Relation you have already studied in class 11th. What is relation? A relation R from the non-empty set A to the non-empty set B is a subset of A cross B. What does it means? Suppose A is the set which is having the element 1, 2 and B is the set which is having the element A cross B. A and B. So A cross B will be equal to, you are finding the Cartesian product जो कि आपने class 11th में सीखा था, that is 1A, 1B, 2A and 2B. और वहाँ हमने क्या सीखा था कि this is the ordered pair. First element comes from the first set and second element comes from the second set. Now this A cross B set is having the 4 elements. Now how many relations are possible in this A cross B? That is the subset of this A cross B. तो इसके subsets कितने बनेंगे? 2 to the power 4. तो that are the relation from A cross B. Now relation is a subset of A cross B. इसमें 1 marker question में क्या आएगा? If A is having a M element and B is having the N element, then the number of relation from A to B is 2 to the power M into N. This you have already studied in class 11th. और आपने class 11th में पढ़ा था domain. The value of the X is called the domain and the range. जो x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू आती है दैट इज़ कॉल्ड द रेंज. दिस रेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इमेज. और ये जो डोमेन था इसको हम प्री इमेज कहते थे. यहाँ तक हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. अब हमें पढ़ना है क्लास 12th में व्हाट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन और द टाइप्स ऑफ द रिलेशन. A relation R in a set A is called, there are 3 terms. First is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive is mathematically, suppose A is the any element which you are taking from the set A. एक A element है जिसको आप set A से निकाल रहे हो. अगर A, A is also in the relation, you can say that that relation is the reflexive relation. If A and B are the 2 elements which you are taking from the set A, if AB is in relation, मतलब A B relation में है, ये आपको given है और आप प्रूव कर दो कि BA is also in the relation, तो ऐसे relation को आप symmetric कहोगे. And third is the transitive. Transitive we take 3 elements A, B and C. If A, B is in the relation, B, C in the relation, if we are able to prove that AC is also in the relation, then we can say that it is transitive. मतलब अगर मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं, AB मेरे पास रिलेशन में है, BC मेरे पास रिलेशन में है और मैं प्रूव कर दूं कि AC भी मेरे पास रिलेशन में है, then that type of relation is called the transitive relation. If any relation is reflexive, symmetric and transitive, that relation is called an equivalence relation. एक बार और repeat कर रही हूँ. Suppose A is a element which belongs to the set A. A भी relation में है तो वो relation reflexive हो जाएगा. जब दो element आप set A से लोगे, A भी आपका relation में है, ये आपको given है. अगर आपने BA भी relation में prove कर दिया तो वो symmetric हो जाएगा. अगर A, B और C आपके पास set A में है, आपने ए बी में रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है और आप प्रूव कर दो कि ए सी भी रिलेशन में है, तो आप कहोगे दिस रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव. इफ़ एनी रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशन इज़ कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन. Now for example, I am explaining you the equivalence relation with a simple example. Suppose T is a set of all the triangle and R is a relation between the triangles T1 and T2, that T1 is congruent to T2 and we have to show that R is an equivalence relation. For proving R is an equivalence relation, we have to prove that this relation is reflexive, this is symmetric and this is transitive. T ऐसा सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स हैं. नाउ द रिलेशन इज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव द रिफ्लेक्सिविटी. हाउ वी विल प्रूव इट? वी विल टेक द ट्राइंगल T1 फ्रॉम द सेट T, क्योंकि एक ट्राइंगल आपने इस सेट T से ले लिया. इस T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1. क्या कोई ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है? यस. इसका मतलब T1, T1 बिलोंग्स टू द रिलेशन. सो R इज रिफ्लेक्सिव.
Okay, now second we have to prove that it is symmetric. तो फॉर द सिमेट्रिक वी हैव टेकन टू ट्राइंगल्स T1 एंड T2. कहाँ से लिया? सेट ऑफ ट्राइंगल्स से. गिवन क्या है? दिस इज गिवन दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. दिस इज गिवन टू यू दैट T1, T2 बिलोंग्स टू द रिलेशन. ये आपको गिवन है. अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा. आप खुद सोचो, फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेकेंड, तो सेकेंड ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू द फर्स्ट. So T2, T1 is also in the relation. What is the relation? Relation is T1 is congruent to T2. ये हमें दिया था कि T1 जो है वो T2 के congruent है और हमने प्रूव कर दिया कि T2 जो है वो T1 के congruent है. So we can say that R is symmetric. Okay. Now we will prove that it is transitive. For proving it is transitive, we will take three triangles. T1 लिया, T2 लिया एंड T3. कहाँ से लिया? सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल. विच व्हाट इज गिवन टू अस? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. दिस इज गिवन टू अस. मीन्स T1, T2 बिलोंग्स टू द रिलेशन. ये हमें दे रखा है. T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1. दिस इज ऑल्सो गिवन. T3. This is also given to us. Now we have to prove that T1 is congruent to T3. अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा. इट एम्प्लॉइज दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3. सोचो, पहला दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, दूसरा तीसरे के कॉन्ग्रुएंट. तो बट डेफिनेट है कि पहला जो है वो तीसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा. सो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3. ये भी रिलेशन में है तो हम कह सकते हैं R इज ट्रांजिटिव. If R is reflexive, R is symmetric and R is transitive, we can say that R is an equivalence relation. Equivalence relation. Now the question based on the equivalence relation, there are different types of the question. One type I have covered in this video. Show that the relation R on the set A is a set, X belongs to the integer, X is from 0 to 12. X की वैल्यू 0 से लेके 12 तक है, सारे इंटीजर्स. ठीक है. गिवन बाय R इज इक्वल टू AB, मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4. We have to prove that this relation is an equivalence relation and we have to find that the element related to 1, या फिर इसी को कहते हैं equivalence class of 1. अब पहले हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें equivalence relation प्रूव करना है. फॉर एनी A बिलोंग्स टू कैपिटल A वी हैव, मतलब A एक एलिमेंट लिया, हमने कहाँ से लिया? सेट A से. अब A का रिलेशन A के साथ प्रूव करना है तो क्या रिलेशन है? A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो हमने निकाला A माइनस A, क्या आ गया? 0. 0 इज डेफिनेटली द मल्टीपल ऑफ 4. 4 0 0. इसका मतलब क्या हुआ? A रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. जब जब आपका A आपने सेट A से लिया था तो आपने बोला R इज रिफ्लेक्सिव. अब इसके बाद सिमेट्रिक के लिए आपने दो एलिमेंट्स ले लिए, मतलब दो इंटीजर ले लिए, एक A और B. दोनों इंटीजर है फ्रॉम 0 to 12. ठीक है. ए बी बिलोंग्स टू द सेट A. यहाँ से A लिखना पड़ेगा. दिस इज द सेट A. अब हमें ये गिवन है कि A और B जो है वो हमें रिलेशन में गिवन है, मतलब A माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. ये इन्होंने हमें दे रखा है. अगर A माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली B माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा. सपोज मैं A की वैल्यू 4 ले लूँ और B की वैल्यू 8 ले लूँ तो 4 माइनस 8 अगर माइनस 4 आ रहा है दैट इज़ डिविजिबल बाय 4. तो 8 माइनस 4 भी तो 4 आएगा, दैट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. तो अगर A माइनस बी रिलेशन में है तो हमने प्रूव कर दिया कि B माइनस ए भी रिलेशन में आएगा. दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द सिमेट्रिक. अब जब हमने ट्रांजिटिव प्रूव किया बेटे तो हमने तीन इंटीजर्स लिए, A लिया, B लिया और C लिया. कहाँ से लिया? सेट A से लिया. A माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ये हमें गिवन है. B माइनस सी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी हमें गिवन है. हमें प्रूव करना है कि A माइनस सी इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4. मैंने इन दोनों को ऐड किया, आप देखो प्लस बी और माइनस बी कट गया. A माइनस सी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. एग्जाम्पल लिख के देखते हैं. सपोज हमने एक वैल्यू 4 ली, B वैल्यू 8 ली और C वैल्यू 12 ली. हमें ऐसी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी कि ये दो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो. तो A माइनस बी देखो 4 माइनस 8 आपका 4 से डिविजिबल है.
फिर आपका 8 माइनस 12 भी 4 से डिविजिबल है। तो डेफिनेटली अगर आप इसमें और इसमें रिलेशन करोगे तो 4 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 8, तो दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। सो हमने प्रूव कर दिया कि AC भी रिलेशन में है। तो इसका मतलब R इज अ ट्रांजिटिव। If R is reflexive, R is symmetric, R is transitive, then we can say that R is an equivalence relation. बट इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बढ़ा दी उन्होंने, क्या बोला? फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से रिलेटेड सारे एलिमेंट बताओ या फिर इक्विवेलेंस क्लास बताओ 1 की। कैसे? अब A में तो सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटे? 0 से लेके 12 तक। अब 1 से कौन से एलिमेंट रिलेटेड होंगे? मतलब x माइनस 1 जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो सबसे दे लो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? 1 माइनस 1 0 आ गई मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1 4 आ गई मल्टीपल ऑफ 4, 9 माइनस 1 8 आ गई मल्टीपल ऑफ 4। उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू रख नहीं सकते क्योंकि सेट A के अंदर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है? 0 से लेके 12 तक। तो द एलिमेंट विच इज़ रिलेटेड टू 1 दैट इज़ 1, 5, 9। Now this is the first type of question I have explained you. इन्होंने आपको इस क्वेश्चन में दे दिया है मॉड्यूलस ऑफ A माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। इसको पेपर में वो कैसे चेंज करके दे सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, मल्टीपल डिविजिबल बाय 5, ऐसा कुछ भी बदल के देंगे। आपको लिखने का तरीका यही है, यू हैव टू राइट प्रेजेंटेशन, यू हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली। Now the second type of question is prove that the relation R on the set n cross n defined by AB related to CD is A plus D plus is equal to B plus C. For all AB belongs to n cross n is an equivalence relation. Find the equivalence class of 2, 3. पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में आप फ़र्क देखो, वहाँ पे सिर्फ आपको एलिमेंट्स दिए थे, यहाँ पर आपको ऑर्डर्ड पेयर दे दिए उन्होंने। ए बी इज़ रिलेटेड टू सी डी, क्योंकि अभी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बताया था तो हमें उसमें ऑर्डर्ड पेयर मिले थे। अब यहाँ एक एलिमेंट ना होके एक ऑर्डर्ड पेयर है जो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ किस तरीके से रिलेट कर रहा है? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब हमें प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ हाउ वी विल प्रूव इट? हम वहाँ एलिमेंट लेते थे, वी विल टेक अ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। कहाँ से लिया? एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नाउ फॉर रिफ्लेक्सिविटी वी विल शो दैट ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। हम ए बी का रिलेशन ए बी के साथ ही प्रूव करेंगे। सी व्हाट इज द रिलेशन? First will be added by the second of this and second is adding by the first of this. AB is related to AB means A plus B is equal to B plus A. रिलेशन से देखो, और आपको पता है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, सो दिस इज इक्वल टू ईच अदर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए वी हैव टू टेक टू ऑर्डर्ड पेयर, सो वी हैव टेकन टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी। और कहाँ से ले लिया? एन क्रॉस एन से ले लिया। ये चीज़ हमें गिवन थी कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। दिस इज गिवन टू अस, ये इन्होंने हमें दी हुई है। अब हमें प्रूव करना है कि सी डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए बी। नाउ द सेम रिलेशन आई हैव यूज, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, वट एवर द रिलेशन इज डिफाइंड हियर। अब आप इन दोनों को देखो, यू नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव। आप इनको ध्यान से देखो, बी प्लस सी, बी प्लस सी, डी प्लस ए, सेम ही तो है, तो आर इज सिमेट्रिक। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रांजिटिव। फॉर प्रूविंग दैट इट इज ट्रांजिटिव यू हैव टू टेक द थ्री ऑर्डर्ड पेयर। अब हमने तीन ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, ए बी, सी डी एंड ई एफ। कहाँ से लिए? एन क्रॉस एन से, इस सेट्स। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, A plus D is equal to B plus C. See, this is given to us. CD is related to EF, so C plus F is equal to D plus E. This is also given to us. Now A, we have added these two. ये इसके साथ ऐड हो गया, ये इसके साथ, D से D कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, तो हमें मिला AF is equal to BE. आप खुद सोचो, अगर ट्रांजिटिविटी के लिए आपको प्रूव करना है कि ए बी इज़ रिलेटेड टू ई एफ, तो आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा? ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, एंड यू हैव प्रूव दैट ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, सो आर इज ट्रांजिटिव।
If R is reflexive, R is symmetric and R is transitive, you can say that R is an equivalence relation. अब इसमें ये भी प्रूव करना है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 3 और नंबर कहाँ पर है सेट में, नेचुरल नंबर है, ऑल द नेचुरल नंबर आर कवर्ड है. तो मैंने लिखा 2, 3 इज रिलेटेड टू ए बी. अकॉर्डिंग टू रिलेशन 2 + b इज इक्वल टू 3 + a. मैंने ये लिख दिया. अब आप देखो, अगर a की नेचुरल वैल्यू आप 1 पुट करते हो तो 3 + 1 इज़ 4. तो यहाँ b की जगह क्या होना चाहिए, 2 + 2 इज़ 4. तो मैंने लिखा अगर a 1 है तो b 2 होगा, अगर a 2 है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा. सी 2 इज़ रिलेटेड टू 3. देन इफ़ दिस इज़ 3 इट विल बी 4, क्योंकि 3 + 3 6, यहाँ 4 होना चाहिए. अगर यहाँ 4 रख देते हैं तो यहाँ 5 एंड सो ऑन. क्यों आया, क्योंकि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर देयर. अगर हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते तो हम यहाँ पे कहीं पे रुक जाते उसको. सो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 3. नाउ the third type of question will be like this. Any relation they can give. वो आपको कोई भी relation दे सकते हैं. Determine whether the relation R defined by R is equal to AB belongs to real number. A minus B plus √3 is belongs to S, where S is the set of the irrational number. मतलब आपको ये प्रूव करना है कि A minus B plus √3 जो है वो irrational number आना चाहिए, जबकि A और B क्या है आपके पास, रियल नंबर है. This relation you have to prove that it is reflexive, symmetric and transitive. First we have taken two numbers A and B that are real. A ही ले लो इसमें, तो A that are real number. A माइनस A, क्योंकि A का रिलेशन आप A के साथ प्रूव कर रहे हैं ना बेटे. A माइनस A that is 0 plus √3 and you all know that √3 is irrational. So it means that A, A belongs to the relation. So R is reflexive. अब दूसरा, A और B दो आपने रियल नंबर लिए. अगर A माइनस B प्लस √3 इर्रेशनल है तो डेफिनेटली बेटे माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या हो गया, B माइनस A माइनस √3, ये भी इर्रेशनल ही होगा. तो ए बी अगर रियल रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में प्रूव हो गया. तो आर क्या हो गया आपके पास, सिमेट्रिक हो गया. अब आपने थर्ड ट्रांजिटिव, उसमें 3 रियल नंबर लिए, ए बी एंड सी, ऑल आर द रियल नंबर. ए माइनस बी प्लस √3 इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज गिवन टू यू, मतलब ए बी रिलेशन में है. बी माइनस सी प्लस √3 बिलोंग्स टू द इरेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू. बी माइनस सी इज ऑल्सो इन द रिलेशन. अब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ, प्लस बी और माइनस बी कट गया. ए माइनस सी जो कि रियल नंबर थे, √3 प्लस √3 मेरा आ गया 2√3. तो ये भी मेरा इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये दोनों रियल नंबर और इसमें ये 2√3 मैंने ऐड कर दिया. तो A, C इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, मीन्स दिस इज बिलोंग्स टू द रिलेशन. सो वी कैन से दैट R इज़ ट्रांजिटिव. अगर R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव, देन वी कैन से दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. Okay, now this question, it is very important question. If R1 and R2 are the two equivalence relation on the set A, then R1 intersection R2 is also an equivalence relation. Or the language can be changed, the intersection of the two equivalence relation on a set is an equivalence relation. हमें क्या प्रूव करना है कि R1 intersection R2 is an equivalence relation. Now in this question they have already given that R1 and R2 is equivalence relation. अगर R1 R2 equivalence relation है, इसका मतलब R1 R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी. हमें ये प्रूव करना है कि R1 intersection R2 is an equivalence relation. Now listen this question very carefully. Suppose A is a element which you have taken from the set A. Because R1 and R2 is an equivalence relation, दोनों रिफ्लेक्सिव भी होंगे. अगर A आपने सेट 1 में लिया है तो A, A R1 में भी होगा और A, A R2 में भी होगा. तो दिस मीन्स दैट A, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2. इसका मतलब कि A अगर आपने सेट A में लिया तो A का रिलेशन A के साथ A, A आपने R1 इंटरसेक्शन R2 में प्रूव कर दिया. इसलिए आप कह सकते हो कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज़ रिफ्लेक्सिव. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज़ सिमेट्रिक. उसके लिए हमने दो एलिमेंट्स लिए A एंड B. वो कहाँ से लिए, सेट A से लिए.
ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये तो हमें गिवन होता है ना कि ए बी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो बेटे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए, तभी तो आप R1 इंटरसेक्शन R2 को सिमेट्रिक बोलोगे। अब प्रूव करते हैं। अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, दिस मीन्स दैट ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2। ए बी R1 में भी है और ए बी R2 में भी है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होते थे। अब क्योंकि R1 और R2 आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब R1 और R2 रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं। अगर R1 और R2 सिमेट्रिक हैं तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, ए बी अगर R1 में है तो बी ए भी R1 में होगा, ए बी अगर R2 में है तो बी ए भी R2 में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक भी होगा। अब बी ए तुम्हारा R1 में है, बी ए तुम्हारा R2 में है, तो डेफिनेटली बी ए R1 इंटरसेक्शन R2 में गया। आप लेके चले थे R1 इंटरसेक्शन R2 में ए बी को और आपने प्रूव कर दिया बी ए को, तो आप कह सकते हो कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो अब हमने प्रूव करना है इट इज़ ट्रांजिटिव। ए बी सी हमने ए से लिया, ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वी हैव टू प्रूव दैट कि ए सी R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका मतलब ए बी R1 में भी है और ए बी R2 में भी। अगर ये बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो इसका मतलब बी सी R1 में भी है और बी सी R2 में भी। क्योंकि R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ए बी R1 में है, बी सी R1 में है, तो डेफिनेटली ए सी R1 में होगा। ए बी R2 में है, बी सी R2 में है, तो डेफिनेटली ए सी भी R2 में होगा। ए सी R1 में गया, ए सी R2 में गया, तो डेफिनेटली इनके इंटरसेक्शन में जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, सो वी कैन से दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव, सो इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ in this lecture we have discussed the different type of the question of the relation and how to prove that that relation is an equivalence relation. In the next lecture we will study about the function. Thank you.